Hi, this is Deepak Pandey, and you're watching Showbiz. Starting, like, how was your day today? Yeah, day is going quite excited and hectic as well because day after yesterday I was shooting, and tomorrow Okay. again I have a shoot. Excitement because I got an award yesterday. This for one of my television show for best Okay. DOP, है ना, Times का Oh, एक, yeah. So so I'm I got, UP. I got a part for this. A little bit excited, yeah, planning to call something ताकि ऑफिस में लोगों को थोड़ा सा स्वीट खिलाया जाए XYZ. Okay, so I being from UP, so I would like to know about that series. Like, if you want to disclose anything Which about series? it. Sorry, कौन सी सीरीज की बात कर रही हैं? one which you just mentioned, it's based on UP or something, right? Hey, you talking about the series जो 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 मैं शूट कर रहा हूँ अभी. If you want to disclose anything about it. स्टोरी which is based on the reincarnation. एक लड़की Okay. है जो कानपुर की है और उसको बचपन से एक सपने दिखते हैं. उस सपनों में ढेर सारी इमेज दिखती है ना. वो इमेज बड़े होने पे उसे पता चलता है कि दिस प्लेस एग्जिस्ट व्हिच इज इन बॉम्बे. तो उन Okay. सपनों के पीछे भागते हुए बॉम्बे में आती है. द मोमेंट शी रीच्ड इन द मुंबई शी स्टार्ट फीलिंग समबडी इज अराउंड. तो Okay. कॉन्सेप्ट इज समबडी इज अराउंड. उसकी खोज में उसकी जिंदगी चलती रहती है. एंड वन डे अननोइंगली शी मेट विद अ पर्सन who is someone, and then Okay. emotions begin from there. So basically it's a love story based on the Okay. reincarnation. Yeah. So 20 years and counting. So how was your journey as a cinematographer and director so far? This 20-year journey is and was very exciting. As a DOP, my journey was awesome, outstanding. You can say because I came in industry. It's a long back. That time it was very difficult to do something in industry because आपको पता नहीं होता था कि how to start and from where to start. There's very selective production houses. So it's not like today scenario कि आप digitally आप पूरी आप अपने होम टाउन में रह के पता कर सकते हो कि who exists where. So that time everything was the things कि आपको आके खुद जाना है and आपको समझना है, देखना है, मिलना है. So that was very individual journey is. But it's all very challenging, exciting. Yeah. And in this whatever project I did, that was very big shows. Like, if you see historical show, so in my cinematography career, whatever shows I have done, like, first show which I did, that was the Krishna Arjun. That for Star Plus. Okay. And after that, I did the show historical Prithviraj Chauhan, again for Star Plus. So the journey begins from the Star Plus, the Prithviraj Chauhan, till end when I quit the cinematography. बहुत बड़े बड़े शोज मैंने किए. महादेव, XYZ, झांसी की रानी, या बंसाली साहब का शो. सो वो जर्नी बड़ी हैपनिंग रही. वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत मिल रहा था मुझे बिकॉज हिस्टोरिकल में आपको जब आप काम करते हो तो हम हम स्मॉल टाउन के लोग हैं और हम एक सपने देख के आते हैं कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग इन इंडस्ट्री. सो आई वाज दैट लकी कि मैं जो भी काम किया वो बड़े काम थे और उसके लिए ढेर सारे अवार्ड से मैं नवाजा गया. बहुत नोटिस हुआ. ये इतनी खूबसूरत जर्नी थी कि व्हेन आई डिड झांसी की रानी, आफ्टर दैट वन ऑफ शोज आई डिड विद ZTV एंड उसके बाद आई प्रोड्यूस द शो फॉर ZTV. सो आप सोचिए कि being a cinematographer, I'm getting chance to produce and direct. So my first production was the PFI for ZTV, and that was the highest TRP show. So that cinematography journey have been like phenomenal. You can say outstanding. Lots of appreciation from the industry. Industry have accepted me. I met with some good team, good people, nice people. जहाँ पे कोई insecurity नहीं थी. So have been very nice. So what was your most experimental take as a cinematographer and director or director? Okay, so अभी तक मैंने आपको डायरेक्शन का बताया नहीं. So I was talking about the cinematography.
Okay, And so direction I started like, you know, I'll tell you in the direction. But रही बात experiment का, because मैंने 15 year plus cinematography की, and I have experiment each and every show. So I was telling you that was like, you know, a great experiment I did in television show was झांसी की रानी for Zee TV. So because जब हम historical करते हैं तो set बहुत बड़े होते हैं, right? And we used to use lots of light equipment. But वो light equipment इतना ज़्यादा होता है because the moment you're shooting a darbar, where like, you know, 100 crowds and Raza and Rani and that kind of jewelry, AC is not giving you cooling because of the heat of the lights. So that was hampering me again and again and again. हर लोग परेशान हो रहे तो I am also part of the unit. I am shooting and creating the light. So in that show that came in my mind how to deal with the heat. तो इस चक्कर में I proposed to my producer कि I want to design the lighting with the tube lights which have very extremely less heats. So my producer except Abhimanyu is very close, like, you know, so always whatever I say he used to buy that. So उसके चक्कर में we used to use like, you know, 250 किलो का जनरेटर या 125 किलो का जनरेटर. Then I come up with the proposal कि okay, we are going to shoot these sequences at 15 kb, just 15 kilo load. So he asked how this is going to happen. I said कि we'll delete all the lights from the set. We are going to use tube lights. तो ट्यूब लाइट की बात तो पहले समझा नहीं लोगों को कि हाउ दिस पर्सन गोइंग टू शूट हिस्टोरिकल शो इन अ ट्यूब लाइट. तो मैंने उसको डिजाइन बनाया, ट्यूब लाइट्स को मंगा के कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट की एंड देन हमने पूरे झांसी की रानी के पूरे सेट पे आई इम्प्लीमेंटेड अराउंड 12,000 ट्यूब लाइट्स, 12,000 ट्यूब लाइट्स हमने पूरे सेट पे, मतलब यू नो ईच एंड एवरी सेट. तो जहां पे हमें 250 किलो जनरेटर लगता था हम 10 किलो 15 किलो के जनरेटर पे भी स्टार्टेड शूटिंग. सो इकोनॉमिकली आपका जो प्राइस एक्सपेंस हो रहा था बिहाइंड द डीजल, बिकॉज ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट किया कि एक दिन में अगर 1 घंटे में 12 लीटर डीजल हमारा खर्च होता है तो 12 घंटे में 15 घंटे में कितना है, विच इज बिकम 150 लीटर मोर देन दैट. देन इन मंथ विच रीचिंग यू नो अराउंड 45,000 लीटर. देन साल का हमने 4.5-5 लाख लीटर डीजल भी स्पेंडिंग फॉर द वन प्रोजेक्ट. सो हाउ टू रिड्यूस दैट? ये रिड्यूस होके आ गया सीधा वेरी मिनिमलिस्टिक, बिकॉज आई स्टार्टेड लाइक यू नो द मोमेंट आई इम्प्लीमेंटेड दिस ट्यूब लाइट ऑल अराउंड दैट सेट. तो लाइट का लोड बहुत कम हो गया, वो इतना कम हो गया. अब हीट भी कम हो गई. वो हीट कम होने से हम सब थोड़ा फिर से ब्रीदिंग लेने लगे, अरे यार अभी तो एसी थोड़ा बंद करो बिकॉज इट्स टू चिल, है ना. सो दैट वाज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट. बट या आई डू ऑलवेज एक्सपेरिमेंट इन एनी ऑफ माय सीरीज. जब तक मैंने फोटोग्राफी की तो हर शो में मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता, हाउ टू क्रिएट द लाइट, व्हाट वाज द सोर्स लाइट ऑफ दैट टाइम. उस एरा में जाके कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो लाइट कैसे लोग क्रिएट करते थे. एक शो था शोभा सोमनाथ का, तो उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो लोग कैसे, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ लाइट, द ह्यूमन लालटेन जो घासलेट मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाते थे. देन अगेन मैं रिसर्च करके अंदर गया तो पता चला कि जो उसमें प्ले होते थे वो प्ले में ह्यूमन इंसान जो होते थे मिट्टी का एक जिसमें पानी भरते हैं उसके रस्सी बांध के गले में लटकाते थे. गले में रस्सी लटका के उस मिट्टी के बर्तन के अंदर आग जलाते थे, है ना. अब उस मिट्टी के जहाँ पे फ्रंट की तरफ में उनको वहां पे मोटी मिट्टी होती थी ताकि उनकी बॉडी को हीट न करे, हीट न करे. कश्मीर साइड में करेक्ट होता है. तो उसमें आग जलाते थे जब एक्टर, अच्छा ये प्ले में यूज होता था कि जब एक्टर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं नाइट में. आज के डेट में हम लोग अपने डिजिटली फीडर से कम ज्यादा कर लेते हैं. तो उस टाइम ऐसे होता था कि आपको जितना एक्टर को दिखाना है और देखना है उतने लोग अपने फायर को उसकी तरफ करेंगे एंड रेस्ट ऑफ पीपल गोइंग टू बी टर्न बैक टू द, है ना. तो जितनी लाइट की ब्राइटनेस होती है वो एक्टर पे जाएगा इन द प्ले. सो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया था शोभा सोमनाथ को कि जितनी भी लाइटें लगाई थी आई यूज जैसे ट्यूबलाइट में आपने घर पे देखा होगा स्टार्टर लगे होते हैं. तो हमने बिस्ली की पानी का बोतल 20 लीटर का लिया, उसके अंदर 200 वाट का बल्ब डाला, उसकी मुंडी को काट दिया जहाँ पे हम लॉक करते हैं,
उसके अंदर 200 वाट का बल्ब डाला और उस बल्ब को कनेक्शन कर दिया स्टार्टर से। तो ऑलवेज यू गेट अ ब्रीदिंग इन द बल्ब, है ना। वो बल्ब नीचे ऊपर ऐसे ब्राइट होगा, कम होगा, ब्राइट होगा, कम होगा। तो ऐसे सारे सोर्स में मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा। बट यस, झांसी वाज द ग्रेट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे मैंने वो सॉफ्टी करके एक लाइट आती है बड़ी सी और उसमें बहुत हीट निकलता है। तो बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग ट्यूबलाइट्स, जो हमारी इंडस्ट्री में काफी बातें हुई और वो सॉफ्टी खत्म हो गई। सो अगर अब आप जाके देखेंगे तो या मतलब वो एक्सपेरिमेंट इतना बढ़िया रहा कि लोगों ने सॉफ्टी लाइट को यूज करना छोड़ दिया। अब वो ट्यूबलाइट वहां से कन्वर्ट होकर अभी डिजिटल ट्यूबलाइट्स पे आ गई है। बट यस, ट्यूबलाइट द सॉफ्टी वाज लेकिन गॉन नाउ। ये मैं कह सकता हूँ दैट वाज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट आई हैव गिफ्टेड टू द इंडस्ट्री, कि आप जो है हीट लाइटों की जगह ट्यूबलाइट से भी आप जो है फोटोग्राफी कर सकते हैं। एंड इस शो के लिए, जहाँ पे जिस शो में मैंने ये इम्प्लीमेंट किया था, I met couple of award. I win also best DOP, not 1, 2, 3, 4, 5. So I win couple of award for that. Okay. So sir, you're talking about Jhansi Ki Rani. I think that show is very close to your heart. So any memory from the sets of from the show? I will not say कि that was the only show which was close to very from my heart. जो भी मैंने शो किया, सारे शोज मेरे दिल के बड़े नजदीक हैं। बहुत अच्छी मेमोरीज वो सारे शोज के कनेक्टेड है। जैसे मैंने महादेव शूट किया था, तो अगर आपने महादेव देखा होगा जो लाइव होके पे आता था, दैट शो इज आई कैन नॉट से कि महादेव, जब मैंने उसको सेटअप किया 20-25 एपिसोड इनिशियल किया, तो महादेव जैसा शो जो मेरे दिल के नजदीक नहीं होगा। बट यार सारे शोज मेरे दिल के बड़े नजदीक रहे हैं, क्योंकि मैं उस शो को अपनी सोल देता था। एक इमेजिनेशन जो होता है, जो सोचते हैं लोग, उसको पन्ने से पेपर पे लिखते हैं, वो जो पेपर पे लिखते हैं उसको विजुअल में ट्रांसलेट करने की एक जर्नी होती है सिनेमेटोग्राफर की। वो बहुत ही कमाल की होती है। मतलब उस कैरेक्टर को, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम कुछ और है, बट उसको किताब के पन्नों पे लिखा है कि अच्छा इसको ये रोल करना है, इसको झांसी की रानी बनना है या इसको शंकर भगवान दिखाना है। तो वो जो विजुअल ट्रीटमेंट होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को मैं महादेव का जब रूप दे रहा हूं, तो उसको क्रिएट करने में विजुअल लाइटिंग जो होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसको करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो बड़ा कमाल का होता है। तो यह मतलब इसलिए वो सारे शोज, हर शो में मैंने अपना ऐसे ही, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे अपना सोल डालता था। तो सारे कैरेक्टर मेरे बहुत नजदीक रहे हैं। मैं पटियाला। अब रही बात की झांसी की रानी की, हम लोग बहुत बातें की है। तो एक बार हम ऐसे शूट कर रहे थे, हमारे साथ एक लड़की थी उल्का गुप्ता, वो बस प्लेइंग झांसी की रानी, छोटी झांसी की रानी थी वो। तो घोड़े के ऊपर बैठने का सीन था, तो मैंने कहा कि उल्का जस्ट टेक केयर ऑफ। अभी कहते कहते समथिंग हैपेंड ऑन द हॉर्स। अब वो उल्का थोड़ा मस्तीखोर टाइप लड़की थी, उसको अगर ऐसे कहो कि मतलब आपको ये चीज नहीं करना है, तो उसे वो चीज करना है, बिकॉज शी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट कि करने से होगा क्या। शी ऑलवेज क्यूरियस फॉर दैट, है ना। उसको ऐसे ऐसे अंदर होता था कि यार मतलब अच्छा ये मना किया जा रहा है, तो इसको करने से क्या होगा। somehow she was very passionate about photography। बच्ची, छोटी बच्ची थी, तब से उसको वो लाइटिंग का करने का जो विजुअल है उसका बड़ा चैलेंज होता था। तो या वो घोड़े पे बैठी थी, मैं बोला यार मस्ती मत कर, घोड़ा गिरा देगा तुझे। सो इन दैट शॉट घोड़े ने उसको गिराया और घोड़े ने उसको लात से मारा, एंड शी जस्ट कोलैप्स। एंड द नेक्स्ट मोमेंट उसको लगा कि लोग हंसेंगे, उसको चोट बहुत जोर की लगी, फिर भी सी गेट्स अप, वो फिर से खड़ी होके फिर से वो सारी चीजें एक्टिविटी। तो ऐसे बहुत सारी मेमोरीज हैं सारे शोज में, जो बड़ी उस टाइम काफी स्केरी भी होती थी कि अगर आप घोड़े पे दौड़ते हुए घोड़े से गिर जाओ, बहुत चोट लगेगी। आपके पैर अगर फंस गए तो आप घसीट उठोगे 100-200 फीट, या अगर घोड़े ने पीछे के पैर से आपको मार दिया तो यू कैन ब्रेक, बोन्स ब्रेक हो जाएगी, कोलैप्स हो जाओगे। तो ढेर सारी चीजें होती है जो हर शो में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मेमोरेबल, मेमोरेबल अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे बहुत ज्यादा होते हैं। एक्शन शोज होते हैं ना हिस्टोरिकल में, तो उसमें बुरे मेमोरीज ज्यादा होती हैं। अच्छी मेमोरीज होती है कि हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पूरी टीम जो है बॉम्बे में नहीं होती, बॉम्बे के बाहर होती है, तो वी स्पेंड टाइम लाइक अ फैमिली। सारे टेक्नीशियन, सारे एक्टर किसी न किसी होटल में पड़े होते हैं, जो एक ही होटल होता है, तो एक बहुत अच्छा सा परिवार बनता है, उसमें बहुत अच्छे टाइम स्पेंड होते हैं। So I have very good memory with that. How has cinematography has changed over the years?
सी ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो अभी मैं देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग सिनेमेटोग्राफी लास्ट 4 years, है ना? ओके, यू कैन से फ्रॉम 2017 2018 से मैंने फोटोग्राफी कंप्लीटली छोड़ रखा है। अभी मैंने एक शो किया था क्योंकि मेरे फ्रेंड का शो है, तो उन्होंने कहा कि आई वांट यू टू सेट अप, सो आई जस्ट सेट अप 1-2 एपिसोड्स। बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए हैं, पहले परिवर्तन ऐसे हो गए हैं, बेटरमेंट की तरफ नहीं हो गए। जो मेरा एक्सपीरियंस, दैट्स द रीजन कि मैंने फोटोग्राफी छोड़ना इसीलिए। जब हम पहले शोज करते थे, व्हेन आई वाज अ सिनेमेटोग्राफर, व्हेन आई वाज डूइंग द शो, तो मैंने देखा कि जो भी चैनल होते हैं उनका बड़ा हमेशा होता है कि यार इस शो को बहुत अच्छा बनाना है हमें। बट एक काम चलते चलते ना, अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि चैनल एफर्ट डालता है, बट इन मीनवाइल पेपर पे प्रोड्यूसर भी उस शो को अच्छा बनाने की बातें करते हैं, बट जहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात आती है तो जो पैशन नाम की चीज है वो किसी में दिखती नहीं, क्योंकि आपने किसी को कमिट किया है कि आपको अच्छा शो बनाना है, आपको विजुअल बहुत अच्छे देने हैं, तो जब आप वो करने जाते हो ना, तो आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं सेट पे ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे डजंट वांट टू जस्टिफाई विद द विजुअल। उनका ऐसा कि हाँ फेस दिख रहा है ना, तो बहुत सैड है ये कि टेलीविजन में विजुअल की इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज्यादा बुरी हो गई है ना? बहुत ज्यादा, मतलब नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, नोबडी। आप किसी भी शो पे देखो तो उसमें कोई डिटेल, ये फोटोग्राफी हो रही, क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, देयर इज नोबडी टॉक्स। सबको एक ही बात है कि अच्छा हाँ लाइन ऐसे कर लो, लाइन वैसे कर दो। दैट्स द रीजन आई क्विट द फोटोग्राफी इन टेलीविजन शोज। जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, इंप्रूव होने की बजाय वो खराब हो रही है। ओके, तो मैं वही पूछने भी वाली थी कि टेलीविजन में भी आपने किया है, फिल्म्स में भी किया है सिनेमेटोग्राफी, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट आपको, मतलब एक it gives you a best chance to use your skill, like films या फिर एक्चुअली मुझे टेलीविजन में अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का बहुत चांस मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यस, जो मैंने फिल्में की मुझे उतना उसमें एक्सप्लोर करने को नहीं मिला, टेलीविजन में मिला। मुझे टेलीविजन में बहुत अच्छा चांस मिला, एंड आई एक्सप्लोर, आई डिड एक्सपेरिमेंट्स जो बहुत ही कमाल का था। आई एम वेरी थैंकफुल टू टेलीविजन वर्ल्ड फॉर दैट। Okay. Moving on, let's talk about OTV, which is your So this is the platform which is focusing on the LGBTQ content. Yeah. Right. So what is the idea behind developing a separate media platform for the third gender of the society? So see, in this 15 plus 17 years journey now, I came in city for the reason. आपकी बर्थ होती है, उस बर्थ का कुछ तो रीजन होना चाहिए, आप किस लिए आए हो। So during this photography, when I was doing television show, always I wanted to tell the story. When I came in this industry, I wanted to tell the story. I wanted to tell the changes through my story. कि मैं वो कहानियां बनाना चाहता हूँ जिससे सोसाइटी में परिवर्तन हो। That was my motto to come in Mumbai and do things. कि मैं कहानियां कुछ अच्छी बनाना चाहता हूँ जिससे सोसाइटी में परिवर्तन होवे, for betterment. What is the value of life? What is the value of emotion? तो ढेर सारे आपके अंदर जो है बबल्स होते हैं कि यार मैं मेरी कहानियों से ये सारी चीजें कहना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी कहानियों से लोगों में सोच बदलेगी, चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैं मेरी कहानियां विजुअल के थ्रू कहता था, बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर, जो ट्रांसलेट नहीं हुआ। होता ना कि आप विजुअल में कुछ कहने की कोशिश करते हो, बट दैट डजंट हैव अ वॉइस, आवाज नहीं है उसमें, तो लोगों को समझा नहीं। ये करते मेरा लंबा टाइम गया, 15 प्लस इयर्स। देन वन डे आई डिसाइडेड आई वांट टू टेल द स्टोरी थ्रू टीवी, ऑडियो वीडियो के साथ मैं कहानी कहना चाहता हूँ। मैंने फिर सिनेमेटोग्राफी छोड़ी, फिर से मैंने अपने आप को फिर से जिंदा किया, जो व्हेन आई वाज वेरी यंग, कि
किस लिए आया था मैं बॉम्बे। अब जब आपको चांस मिलता है कहानी कहने का, एक तो होता है कि यू गो हियर एंड देयर एंड टेल द स्टोरी, बट योर टीवी स्टार्ट करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि कुछ तो मुझे कहानियां ऐसी कहनी है जिससे सोसाइटी में फिर से परिवर्तन हो गए। सो यहाँ पे जब बात आती है LGBTQ प्लस के जो हमारे लोग हैं, ये दे एग्जिस्ट बिटवीन अस, दे आर पार्ट ऑफ द लाइफ, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट? दे एग्जिस्ट इन सोसाइटी. It's not like that कि they are outer, they are came from somewhere. No, they are the part of the society. They exist. If they are part of the society, they exist. तो इन्हें acceptance मिलनी चाहिए. That was my thought, right? तो ये सोचने के बाद मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसी कहानियां बनाऊं जिससे इनको acceptance मिले सोसाइटी में, क्योंकि कहानियों से हमेशा परिवर्तन आते रहे हैं. एक कहानी जो होती है, चाहे आप तुलसी दास की बात करें, सूरदास की बात करें, या जितने भी है, तो या अशोका की बात करें, तो देयर मल्टीपल टाइम्स हैव हैपेंड कि आपकी कहानियों से सोसाइटी में परिवर्तन आए हैं, और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है. तो मैंने कहा कि यार हम सोचते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि ऐसी कुछ कहानी बनाओ जिससे इस कम्युनिटी को लोग समझें, क्योंकि हम समझने को तैयार नहीं है. हम जब तक समझेंगे नहीं तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे. और अगर एक्सेप्टेंस परिवार में हो जाए, अगर कोई भी घर में इस तरह का व्यक्ति हो जाता है, तो उसको अगर परिवार ने, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, तो पड़ोसी कर लेंगे, पड़ोसी ने किया तो समाज करेगा, सोसाइटी कर लेगा, और शहर कर लेगा. दिक्कत हो रही कि हम खुद, अगर हमारे घर में कुछ इस तरह का स्पेशल चाइल्ड, मैं इसको LGBT नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूँ कि एक किसी भी परिवार में इस तरह का एक गॉड गिफ्ट आ सकता है, और हमारी ड्यूटी है कि हम उसे एक्सेप्ट करें. हम नहीं कर रहे हैं तो किस पेन से वो गुजरते हैं उसको हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. तो वो किस पेन से गुजरते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या चलते हैं, ये मैं अपनी कहानियों के जरिए कहने की कोशिश किया. आई रीच कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स की ऐसी मैं कहानियां बनाना चाहता हूँ. सो नोबडी एक्सेप्टेड दैट दोज स्टोरीज. किसी भी प्लेटफॉर्म ने इस तरह की कहानियों को एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं, वी डोंट वांट मेल प्रोटैगनिस्ट फॉर LGBT. सो आई मेट विद कपल ऑफ रिजेक्शन, जो मुझे और स्ट्रॉन्ग करता गया. वो रिजेक्शन से मैं मायूस नहीं हुआ, मैं और स्ट्रॉन्ग करते गया. फिर मैंने सोचा यार कि प्रॉब्लम तो यही पे आ रही कि इसको पब्लिश कैसे किया जाए, तो हमें कुछ ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे ये दिक्कत खत्म हो गई. तो हमने योर टीवी की स्थापना की, है ना, क्रिएटेड योर टीवी, जहाँ पे हमने इसको LGBT फोकस्ड प्लेटफॉर्म है. ये इसके पीछे की रीजन है. हम खुद चाहते हैं कि जैसे आप पूरी दुनिया गाड़ी में घूमती है और हम लोग सिग्नल पे खड़े नहीं होते, जब भी whenever we reach in the red light, so we see there's two hands जो उठ जाते हैं. एक हाथ उठता है भीख मांगने के लिए, राइट, और उस हाथ उठने का रीजन होता है कि उनको 2 वक्त का खाना चाहिए, और दूसरा हाथ उठता है उस जो कांच खोला होता है गाड़ी का, उसकी बटन दबाते हैं तो कांच ऑटोमेटिकली ऐसे चढ़ जाता है. तो there is a difference between inside the car and outside the car. हमने अगर इस कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो उनके हाथ जो हैं वो भीख मांगने के लिए नहीं बढ़ेंगे, वो भी हमारी तरह गाड़ी में बैठ के जा रहे होंगे. So we are not accepting them. That's the reason they are suffering. 21वीं सदी की बात कर रहे हैं हम लोग, 21वीं सदी में आ चुके हैं. हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश काफी प्रोग्रेसिवली एजुकेशन सेक्टर से लेकर हर जगह तेजी से चेंजेस आ रहे हैं. इस तेजी में आई वांटेड पर्सनली यार इस कम्युनिटी को एक्सेप्ट करो. दे आर बिटवीन अस, दे आर, वो हमारे ही तो है, कहीं बाहर से तो है नहीं. अगर हमारे हैं तो हम उनको हक क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उनको मुआम हक क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उनको एजुकेट क्यों नहीं होने दे रहे हैं, हम उसी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं होने दे रहे हैं. हमें उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है. एंड ऑफ द डे वी आर द ह्यूमन. जो सोल हमारे अंदर है वही सोल आपके अंदर है. तो जो जेंडर बायस्ड की बातों में हम फंसे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए. एंड ऑफ द डे हम सब जो है ह्यूमन है, इंसान. तो दैट्स द रीजन टू स्टार्ट दिस प्लेटफॉर्म कि हमारी कहानियों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं इन लोगों में यही खुशी, जिन खुशियों को हम जीना चाहते हैं, इनको भी उस खुशी से जीने का अधिकार है. लेट देम लिव. हाँ, लेट देम लिव. कॉन्सेप्ट इसके लेट देम लिव. तो यही रीजन है मेन कि मैंने योर टीवी को स्टार्ट किया, जहाँ पे
मेरी कहानियों के जरिए, हमारी एफर्ट की वजह, हमारी कहानियों के जरिए सोसाइटी में परिवर्तन आए और इसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो अभी तक जितने भी रिलीज हुए हैं उस प्लेटफॉर्म आपने न्यू स्टार्ट किया है, तो सारी इज लाइक लेस्बियन स्टोरीज, लाइक बैक टू बैक. Won't it will get a monotonous for the audience to just... जो भी हमने स्टार्ट किया, it's not a lesbian story. First of all, I do not say it's a lesbian. It's a love story between two women. So we started, हाँ, it's a love story between two women. किसी भी व्यक्ति को किसी से भी प्यार हो सकता है. And if anybody is fall in love, तो उसको उस प्यार को जस्टिफिकेशन के लिए उसमें, क्योंकि वो प्यार हुआ, अगर उस व्यक्ति को लगता है कि इस प्यार से मुझे खुशी मिलेगी, उसको रहना चाहिए. जेंडर डजंट मैटर, नंबर 1. नंबर 2, हमने खाली इस पे लव स्टोरी बिटवीन टू विमेन की कहानी नहीं बनाई है. अगर आप देखेंगे तो हमने कहानी बनाई व्हिच इज बेस्ड ऑन द क्रिकेट. हमने एक ऐसे क्रिकेट की कहानी बनाई है जहां पे जेंडर नहीं है, जहां पे इक्वलिटी, यू सी इक्वलिटी बिटवीन द जेंडर. तो मैं ऐसा सोचता हूं खुद, किसी मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर इक्वल. हम उनको इक्वल देखते नहीं, वो हमारी गलती है. वी हैव टू एक्सेप्ट. तो अगर आप हमारी गेम की सीरीज देखेंगे, गेम ऑफ सेक्सेस उसका नाम है, क्रिकेट पे बेस्ड है. आप पहली बार ऐसा कोई क्रिकेट पे सीरीज या प्रोग्राम देखेंगे जहां पे लड़का लड़की एक साथ खेल रहे हैं और उनमें there's somebody who interest point is the girl, there's a boy whose interest point is the boy. तो किसका क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो हमको उससे लेना देना नहीं. End of the day, we are the human playing game together. What a challenging and entertaining game can be. अगर हमारे, आप खुद सोचिए कि हमारे देश में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां हैं, राइट? हम लड़कियों पे अलग से मैच देखते हैं, लड़कों पे अलग से मैच देखते हैं. अगर यही लड़के और लड़के एक साथ मैच खेलेंगे तो क्या ही कमाल होगा. बेसिकली एंड ऑफ दैट इज द एंटरटेनमेंट, राइट? तो हम क्यों बधे हुए हैं ब्लॉक माइंडेड की लड़कियां अलग, क्यों लड़कियां 150 की स्पीड में बॉलिंग नहीं कर सकती हैं? एक रीजन बताइए. ऑफ कोर्स कर सकती हैं. अगर कोई महिला, एक बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स क्या है? बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया का सबसे अच्छा क्रिएशन है बेबी बनाना, बेबी क्रिएशन. अगर महिलाएं बच्चा पैदा कर सकती है तो कुछ भी कर सकती हैं. हम उनको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप हमारी सीरीज को देखेंगे तो आपको उसमें बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि इक्वलिटी बिटवीन द जेंडर, राइट? अब ये हमारी पहली सीरीज. दूसरी सीरीज हमने जो लॉन्च की है, दैट वाज द लव स्टोरी बिटवीन टू विमेन. उसमें भी हमने जो सीरीज, जैसे आप मोम्बियन की बात करेंगे, हिंदुस्तान में हर पेरेंट्स को चाहिए होता है कि हमारी घर में बच्चा आए, राइट? बच्चे आने की बड़ी खुशी होती है. अगर सब बेसिकली अगेन हम वहीं पे आ जाते हैं कि अगर किसी लड़की को किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो उन लड़कियों के जो पेरेंट्स है ना, उनके दिमाग में सोच आती है कि यार ये लड़की प्यार तो कर रही है, बट व्हाट इज द फ्यूचर? उनको फ्यूचर जो देखने की बात होती है, हाँ, उसमें एक ही चीज सोचा जाता है कि यार आगे इनका कैसे बढ़ेगा, करेंगे क्या, ये बच्चा कैसे पैदा करेंगे. तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच है ना हॉन्ट देम. तो हमने उस कहानी में दिखाने की कोशिश की कि इफ एनी गर्ल फॉल इन लव विद एनी गर्ल, बच्चा भी बनने का तरीका है, देयर इज अ वे. उनकी खुशी अगर एक आपस में साथ रहने की, तो उनको एक्सेप्ट कर, उनको रहने दीजिए. और रहने के बाद बच्चे बनने की जो जर्नी है वो भी दिखाई है मैंने. तो उसमें है कि दो लड़कियां प्यार में हैं और उनको बच्चा बनाना है, और वो कैसे उस खूबसूरत जर्नी में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. टुवर्ड्स एंड हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है. अब उसमें भी हमने उसको और डिफाइन किया कि बच्चा पैदा होने पे दोनों लड़कियां माँ कैसे बने. सो वी हैव यूज एक लड़की का एग और दूसरी लड़की का स्टमक यूज करके हमने वो जो क्रिएशन ऑफ बेबी किया, तो दोनों लड़कियां माँ बनी एंड दे हैव ब्यूटीफुल लाइफ विद दैट. तो ऐसे फिर उसके बाद हमने एक स्टोरी की जो 2611 पे है, 2611 पे हमने की. तो आई डोंट सी कि ऐसा कुछ होगा कि हम खाली कहानियां जो बना रहे हैं वो लेस्बियन लव स्टोरी होंगी. उन कहानियों में कहानी, क्योंकि एक लड़की को एक लड़की को प्यार हो गया है इसलिए उसको वो लेस्बियन नहीं है. एवरी प्रोडक्ट, जैसे आप किसी भी फिल्म, किसी भी टेलीविजन शो, किसी भी सीरीज की बात करते हैं तो उसकी
जो प्रोटैगनिस्ट आपके होते हैं वो मेल और फीमेल होते हैं। हमारी कहानियां वैसी ही हैं, बट यहाँ पे मेल की जगह दोनों फीमेल है। क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों फीमेल काम नहीं कर रही हैं। आप देखिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, क्यों नहीं ले सकती आप? करेक्ट। जहां पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे कोई फीमेल भी बैठी हो सकती है। अब आप उसका इंटरव्यू लेंगे, वो इंटरव्यू देंगे। तो हर कहानियों में मुद्दे अलग हैं। हम जो कहानियां बना रहे हैं यूटीवी के लिए उसमें, और वो मुद्दे इसलिए हम अलग अलग कैरेक्टर से हैशटैग कर रहे हैं, यार इनको जीने दो, एक्सेप्ट देम, लेट देम, मतलब लेट्स एक्सेप्ट देम। तो लड़कियों की हम कहानी लेके और लड़कों की भी कहानी आएगी, यू नो, क्रॉस जेंडर की हम कहानी बताएंगे, तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द कम्युनिटी। धीरे धीरे सारी कहानियां आएंगी। ओके सर। So अभी जो आपकी लेटेस्ट रिलीज थी, लेटेस्ट ही कहेंगे उसको, that पंखुड़ियाँ उड़ी उड़ी, it got a very great response from the audience. So what do you have to say about it, about its success? Like shows, like people are accepting these shows, such shows, like, you know, it is an achievement in itself. So what do you have to say about it? आपने अगर मेरी, आई एम वेरी एक्चुअली, मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि जो मैं सोचा है, जो एक क्या होगा कि आप कोई भी चीज क्रिएट करते हो तो आपकी एक माइंडसेट होता है, यू हैव अ विचारधारा, है ना, एक आपकी इमेजिनेशन होती है, उस इमेजिनेशन के थ्रू आप सब कुछ कर रहे होते हो। और उस सोच को लोग बहुत पॉजिटिवली अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही कमाल की खुशी मिलती है, जो आपको हमेशा गूज़बम्प्स देती है, विच मोटिवेट्स यू, जहां से आप एक्साइट होते हो, जहां पे ढेर सारी चीजें होती है विच यू नो गिव यू कॉन्फिडेंस। तो या आई एम लाइकिंग इट। तो इस सारी कहानियों में मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी को मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक ही मैसेज है, इन अ डिफरेंट वे, लेट देम लिव, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एक्सेप्ट देम। So lastly, message for your fans. लास्ट क्वेश्चन अगेन, मेरी सबसे यही गुजारिश होगी, जो भी लोग हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या जो भी लोग हमारे शोज को देखते हैं, फैंस, इफ दे मेट विद एनीवन हु बिलोंग फ्रॉम द कम्युनिटी, गिव देम जादू की झप्पी, एक्सेप्ट देम एंड लेट देम लिव, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, they are within the society, है ना, हमारे आपस के लोग हैं, हमारे अपने लोग। हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसी भी परिवार में अगर इस तरह का बच्चा आता है, बच्ची आती है, तो हमारा फर्ज है हम उसे एक्सेप्ट करें। सो आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज एक्सेप्ट दिस कम्युनिटी, है ना। अगर हमने इन्हें एक्सेप्ट कर दिया तो 21वीं सदी जो है, जैसे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की होगी, सच में होगी, अगर हम इन जेंडर के बीच से निकल के सही दिशा में सोचने लगे। सो दिस 21 इज आवर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें आप बिलीव करते हैं आप उसको करिए, और आपको उस सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। If you are 100% and you going to meet with the success, and that's the success, जब आपको अंदर सुकून मिले, दिल के अंदर, और वो सुकून तभी मिलता है जब आप लोगों के लिए करते हो। तो खाली अपने लिए ना सोचें, आपके आसपास के लोगों के लिए सोचें, सोसाइटी के लिए सोचें, देश के लिए सोचें, आपको सुकून मिलेगा। प्लीज कीप इट अप। ये है मेरा मैसेज फॉर द नेशन। वो लोग जो इस शो को देख रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो हमारी सीरीज को देख रहे हैं, स्प्रेड द लव अराउंड यू। So guys, this is it with our segment of In Conversation with Deepak Pandey. If you want more such updates related to Indian television, be with us and follow our channel.